afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Students are joining, and we will just start after 1 minute. Ninety participants have joined. Two. Yes, file is visible. Word Yes, sir. file. So I will focus today only on the gears and bearings, and brakes and clutches. I will take these 4 topics because all other topics has been completed by Harish sir. So I will take the questions which are belong to gears or bearing or brakes or clutches. So in this question set, I'm taking this question. A force of 400, question number 6. A force of 400 Newton is applied to the brake drum of 0.5 meter diameter. So question is related to brake drum. So let me take the. So this is the data. Diameter of the brake drum is 0.5 meter. So radius is 0.25 meter. Force is given 400 Newton. This is the force. So there is a belt over the brake drum. So in this belt system, this can be treated as a belt pulley system. So we have the relation T1 by T2. Am I audible? I am audible? Yes. Yes. So T1 by T2 is e to the power mu theta. This is the basic relation we have for belt pulley system. So here this force is tension T1 and the tension on the slack side will be T2. So wrapping angle is also given. It is 180 degree. So theta is 180 degree over here. So in this equation, theta has to be taken in radians. Very careful. Don't take theta in degree. It is in radian. So it is 180 degree means it is pi radian. If the coefficient of friction between the drum and the band is 0.25, so mu is also given 0.25, and the braking torque applied in Newton meter is. So question is asking to find the braking torque. Torque हमें निकालना. Let torque is mt or let torque is t. So we have to find the torque. So for the belt pulley system,
the formula for the torque is T1 minus T2 multiplied by radius, है ना? Radius multiplied by radius. So T1 is given 400. T2 we can find from here. So it is 400 divided by T2 is e to the power mu. Mu is 0.25 and theta is pi in radians. So from here you can find T2. So calculator सभी के पास हैं. Please calculate and tell me what is the value of T2. इसका आ रही है सर 182.37. Very good. So it is coming 182.37. The unit is Newton. 400 Newton and it is 182.37. So put this value here. 182.37 T1 minus T2 into radius. So diameter is 0.5. That's why radius is 0.025. 0.25, not 0.25. It is 0.25. So it is in meter. It is in Newton. So final answer will be Newton meter. So solve it. 400 minus this and into this. बताइए कितना? 54.4. 54.4 Newton meter. meter. Okay. So option A is 100. It is 54. Yes, this is the right answer. So option B is correct. 54.4 Newton meter. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है. दो तीन फॉर्मूले कंसेप्चुअल फॉर्मूले यूज हुए ना. एक तो T1 by T2 वाला फॉर्मूला यूज हो गया और एक टॉर्क का फॉर्मूला यूज हो गया, है ना. टॉर्क जो है T1 minus T2 into R. So this question is over. Now I am again forwarding. स्टाफ का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, बॉल बेयरिंग का क्वेश्चन ये मैंने कल करा दिया था आपको, इसे हम छोड़ देते हैं आज. और अब हम ले रहे हैं ये वाला क्वेश्चन. So a band brake having bandwidth of 80 millimeter, diameter is 250. So drum diameter is 250. So diameter is 250 mm. So radius is 125 mm. Correct? Coefficient of friction, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना. It is a 2 marks question in GATE 2010. So coefficient of friction is 0.25. Mu is 0.25. Angle of wrap is 270 degree. So theta is 270 degree. We have to convert it into radians. So it is 270 into pi by 180. Then this will be 3 pi by 2. Okay, 3 pi by 2. So angle of wrap is 3 pi by 2. Is required to exert a friction torque. Torque is given over here. So torque is given 1000 Newton meter. The unit is Newton meter. The maximum tension in kilonewton developed in the band. So question is asking about the maximum tension. So maximum tension is T1. अभी हमने देखा. So maximum tension is T1. Slack tension is T2. So we have the relation T1 by T2 is e to the power mu theta. Here maximum tension is the unknown. So we have to find T1 basically. T2 is also not given. So I will write T1 divided by T2 e to the power mu. Mu is given 0.25 and theta is we have converted it into radian. So it is 3 pi by 2. 3 pi by 2. Now solve is. So T1 by T2 equal to how much? बताइए कितना आ रहा है? e to the power 0.25 into 3 pi by 2. कितना? 3.248. 3.248. Okay, so this is 3.248. Let this is my equation number 1. Okay, now the torque is also given. So the formula for the torque is T equal to T1 minus T2 multiplied by radius of the drum. So torque is given 1000 and T1 is not given. T1 is the unknown. T2 is also not given. And radius is given. It is 125 mm.
but the torque is in Newton meter. So we will convert the radius into meter. So it is 0.125 meter. So I will use 0.125 meter. Yeah, na, unit compatibility is very, very required. Always check the units. You are working in Newton meter, then you have to convert the radius in meter. So 1000 T1 minus T2 into 0.125. From here, T1 minus T2 will be कितना आ रहा है? Solve करिए. 1000 divided by 0.125. ये सर ऊपर T1 upon T2 निकाला है कि T2 upon T1 है? ये वाला? हाँ. T1 by T2. That is T1 by T2 is e to the power mu theta. More than 3 आ रहा है तो T1 maximum tension है. T1 is the maximum. माइनस में आ रहा है सर. T1 माइनस में क्यों आएगा? e to the power mu theta है ना? माइनस में तो नहीं आएगा. फिर से करिए एक बार. e to the power 3.56 आ रहा है सर T1 क्या आ रहा है? 3.56 किलोमीटर. आप आंसर पे पहुंच गए? नहीं, मुझे आप पहले ये बता देते T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आ रही है? 8,000. 8,000. Okay. So this is your equation number 2. Now equation 1 and equation 2 are the equations in the unknowns T1 and T2. So two equations, two unknown, it can be solved mathematically. So from solving these, you can find T1 also, you can find T2 also. दोनों ही मिल जाएंगे आपको. दो इक्वेशन, दो अननोन. तो T1 कितना आ रहा है संदीप? 3.56. T2 आ रहा है सर. So option B is 3558. हैं? T2 निकाला है सर मैंने. 3.58 को 3.56 मानो. बिल्कुल हाँ वही है. 3.558 आ रहा है तो 60 हो गया ना. बिल्कुल सही है. up to 2 digits decimal it is approximated at 3.56. So this question is also over. Going further, this question related to rivets, so I am not taking the rivets because it has already completed. Now this question is related to bearing. This is related to bearing. I will take this. General bearing, a lightly loaded full general bearing. There are two types of bearing. One is general bearing, one is rolling contact. So general bearing is a light, and partial general bearing means when theta is less than 360, 120 degree, etc. So has the general diameter of 50 mm. So diameter is 50, general diameter, and bush bore of 50.05. So bush bore D dash is 50.05. Bush and shaft, bush and the general. So the clearance is 50.05 minus 50. So clearance is 0.05 mm. Clearance. And this clearance is diametral clearance or the radial clearance. Clearance are again divided into two types. One is diametral and one is radial. Two types of clearance. So this clearance is diametral or this clearance is radial. Because you have subtracted diameter from diameter, so it is a diametral clearance 0.05. So the radial clearance is given by C by 2. So it is 0.05 divided by 2. So it is 0.025 mm. Okay. So it is the radial clearance. Now, question को आगे पढ़ते हैं. And the mm. ठीक है. Bush length is 20 और D is 50 है ना. Bearing, general bearing के केस में L by D is a very important parameter है ना. L by D ratio of the shaft, length of the general, diameter of the general. So here L is 20, D is 50. If
rotational speed of the journal is 1200 rpm capacity, है ना? Because the friction plays very important role, so you have to use a lubricant and plays very role because it is a function of time. It is a function of temperature, not time. So viscosity let mu the power loss in watt. Question is asking about the power loss and unit is watt. So will be. So we have to calculate the power loss. So there will be power loss due to the friction. So we have to calculate power loss. So P is unknown in this question. है ना? Question का data हमने note out कर लिया है ना? We have to find power. Okay, and how the power can be found? Power formula is 2 pi nt kilowatt. किलोवाट आ जाएगा तो उसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से क्या क्या गिवन है 2 pi n is the revolutions per minute, so it is given, so it is 2 pi into 1200. It is already given 2 pi into 1200. Torque is not given in the question, so we have to calculate the frictional torque. We have to calculate the by. Let's calculate the frictional torque. So frictional torque is given by force into at by radius, force into radius. So movement is force into radius.
Yes, am I audible now? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, okay. I was disconnected. हम यहीं पर थे. We were calculating the torque, and torque is force into radius, and force is also not given in this question. So we have to calculate the force first. Yeah. So force can be found by force is basically shear stress into area. है ना? Force is basically force का formula क्या है? Force is shear stress. Let the shear stress is tau multiplied by area. So I can write it over here, tau multiplied by area multiplied by radius. Okay, now tau is the shear stress, and this shear stress can be found by law of viscosity. So we have shear stress is given by mu times du by dy. ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ना? ये लॉ फॉलो करती है हमारे बुश बियरिंग में लॉ फॉलो होता है. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, tau is given by mu times du by dy. Okay, or in a simplified way I can write it mu times u divided by y, है ना? u divided by y. I can write in this way. And for bush bearing I can write it mu. So mu is given in question. Mu is 0.03, है ना? Mu is the viscosity. So 0.03 Pascal second. So again we have to check the unit compatibility, है ना? Unit compatibility. So clearance is given in millimeter. It is given in Pascal second. So I will work in the force is in Newton. Distances are in millimeter. So I will work in Newton per mm square. है ना? I will work in Newton and millimeter. So stress will be in megapascal, है ना? Megapascal is Newton per mm square. So this Pascal I am changing into megapascal. So this 0.03 will be 0.03 into 10 to the power minus 6 megapascal second. ध्यान से समझिएगा. इस पास्कल को मैंने मेगा पास्कल में चेंज कर दिया, ठीक है? तो +6 आएगा, है ना? 1 पास्कल इज माइनस ही आएगा, है ना? 1 मेगा पास्कल इज 10 to the power 6 पास्कल. So when Pascal converted into megapascal, it will be divided by 10 to the power 6. So it is 0.03 into 10 to the power minus 6 megapascal second. So this is my viscosity. So by this equation, I will use 0.03 into 10 to the power minus 6. This is the viscosity in megapascal second. है ना? Megapascal का मतलब force is in Newton, dimensions are in millimeter. Now U is the velocity. So velocity is not given in question. So we can again find U by pi dn by 60. A very well known relation, pi dn by 60. So it is pi, diameter of the journal is 50 millimeter, and n rpm is 1200. It is given in question, 1200 divided by 60. तो जरा इसे सॉल्व करके बताइए U कितना आ रहा है? What is the velocity? Pi dn by 60. Pi into 50 into 1200 divided by 60. सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? संदीप कर रहे हैं? कोई भी बता दें. Pi into 50. मैं सुन पा रहे हैं ना आप सब लोग? Yes sir, 3.14 meter per second. 3.14. यूनिट क्या बताइए आपने? सही वेलोसिटी है कि डिस्टेंस है सर? हाँ वेलोसिटी है, तो आपने यूनिट क्या बताई है? मीटर पर सेकंड बताइए सर. मैं 1000 को डिवाइड कर दिया बाद में. अच्छा आपने डिवाइड भी कर दिया. नहीं डिवाइड मत करिए ना, बिकॉज हम तो काम कर रहे हैं न्यूटन और मिलीमीटर में. तो हम वेलोसिटी मिलीमीटर में लेते हैं. तो ये कितना आ रहा है मिलीमीटर में? कितना आ रहा है? मिलीमीटर में आ रहा है 3141.59. 3141.59 millimeters per
सेकेंड, ठीक है। तो अब हम u की जगह पे यूज कर लेंगे 3141.59, दिस इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय y। अब y की जगह आप क्या यूज करेंगे बताओ? तो y की जगह आप ये यूज करोगे, देखो ये हमारा जर्नल है, ठीक है, ये हमारा बुश है, इनके बीच में लुब्रिकेंट है, ठीक है, लुब्रिकेंट है। तो जर्नल का डायमीटर कितना है 50 और बुश का डायमीटर कितना है 50.05। तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है वो कितना हुआ 0.05, है ना। डायमीट्रल क्लियरेंस हमने निकाला था 0.05, तो रेडियल क्लियरेंस हो गया था हमारा 0.025, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पार्ट है ये रेडियल क्लियरेंस है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियल क्लियरेंस की वो 0.025 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज 0.025। तो 0.025 किसमें है, मिलीमीटर में है या मीटर में? इट इज इन मिलीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.025। ये जो y है ना, ये y आपका रेडियल क्लियरेंस के बराबर आएगा, है ना। y जो किसके बराबर आएगा, रेडियल क्लियरेंस के बराबर आपको लेना है y। So by the Newton's law of viscosity we will calculate the shear stress. Shear stress is mu times u by c, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mu times u by c, where c is the radial clearance. So इसको सॉल्व कर दीजिए संदीप, कितना आ रहा है shear stress कितना आ रहा है, और डोंट चेंज द यूनिट, जो भी आ रहा है बस वो बताइए। तो उसकी यूनिट अब हमने कंपैटिबिलिटी कर ली है। 0.03 into 10 to the power minus 6 into 3141.59 divided by 0.025. Yes. क्या आ रहा है सर? हाँ। 0.037 0.037 वेरी गुड। तो इसको अब हम लिख देते हैं यहाँ पर 0.037, और इसकी यूनिट ये शियर स्ट्रेस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मेगा पास्कल, है ना। मेगा पास्कल होगी, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। So it is 0.037 mega Pascal. Okay. Now, shear stress is available, radius is available, only the area is required, है ना, area. So area, है ना, during this phenomena, what is the area? So area can be found by the curved surface area of the cylinder, curved surface area of the cylinder. So our shaft is working just like a cylinder. So the curved surface area of the shaft is 2 pi RH होता है ना, curved surface area of the cylinder। तो एक तरह से pi dh होता है ना। h की जगह यहाँ पे लेंथ ऑफ द शाफ्ट ले लेंगे तो pi dl हो जाएगा। So this is the area, pi dl. Okay, so you can write pi, and diameter of the bush is 50 given in question, and length is also given 20 mm. So it is 20. Now multiply it, कितना आंसर आएगा? It is I think 1000 pi. So just use the values here. Shear stress is 0.037. 0.037 आपने ये फाइंड किया है। एरिया आपका आया है 1000 pi, and radius of the journal is 25. Radius of the journal is 25. So calculate the torque. तो तीनों को मल्टीप्लाई करिए, टॉर्क बता दीजिए कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेशन है इसमें, है ना। टॉर्क बताइए कितना आ रहा है। टॉर्क बहुत ज्यादा आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 2900 यूनिट न्यूटन mm होगी सर। देखो मेरे पास तो 148 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 148 इंटू 296 के आसपास आ रहा है मेरे पास डॉट। या तो आप कैलकुलेशन मिलाओ जरा अपनी कैलकुलेशन शुरू से। शियर स्ट्रेस कितना आया था आपका?
हाँ, शियर स्ट्रेस कितना आया था? शियर स्ट्रेस सर मेरा आया था 0.037। मेरा शियर स्ट्रेस आ रहा है 1.88 इंटू 2 इंटू 10⁻³ हाँ सही है, -3.03 आ रहा है या 003 आ रहा है, ये चेक करो। 0.0 दोबारा करना पड़ेगा सर, 0.0 ये कुछ आप डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हो, 0.003 आएगा। शियर स्ट्रेस चेक करो, प्रॉपर कैलकुलेशन करो। मैं कर लेता हूँ, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं कर लेता हूँ। पावर -6, ठीक है। हाँ सर 0.003 आ रहा है सर। हाँ वही तो ये 0.037 नहीं आएगा, ये 0.0037 है ना। अब आप यहाँ ये 00 हो गया, ठीक है। अब आपका एरिया है कितना, 1000 पाई, और रेडियस आपकी है 25, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए और टॉर्क बताइए। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है? 96.0। 296, वही तो मैं कह रहा था, मेरे पास 296 है। सो इट इज 296 पॉइंट, आगे बता दो कितना है? 08। सो इट इज, अब इसकी ये टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मिलीमीटर, है ना। वी आर वर्किंग इन न्यूटन एंड मिलीमीटर, तो हमारी यूनिट उसी हिसाब से चल रही। सो टॉर्क हमारा अभी आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर लॉस। क्वेश्चन ने हमें टॉर्क थोड़ी पूछा है, हम क्वेश्चन ने पूछा है पावर लॉस। तो पावर लॉस यहाँ से निकाल लीजिए, 2π/nt डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻6 से। तो टॉर्क अवेलेबल है, आरपीएम अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। सो इट इज 2π, n इज 1200, टॉर्क आपका आया 296.08 डिवाइडेड बाई 60 10⁻6। सॉल्व करिए इसे। ये आ रहा है सर 37.20 वॉट। 30, अच्छा वॉट में कन्वर्ट कर दिया आपने? 1000 का मल्टीप्लाई कर हाँ दिया ठीक सर। है, हाँ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अभी आपका 0.037 आ रहा होगा, है ना, 0.037 किलोवाट। तो जब इसको वॉट में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 37 पॉइंट, हमारा आंसर देखो 37 है। सो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। बुश बियरिंग का पूरा रिवीजन हो गया। अब आपके बियरिंग का कंप्लीट रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। देखो इसमें कितने सारे फॉर्मूले यूज किए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज किया है, ठीक है, टॉ इक्वल टू म्यू टाइम्स ड्यू बाई dy। हमने यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला भी यूज किया है, फ्रिक्शन इनटू रेडियस। कंसेप्चुअली याद रखिए, फ्रिक्शन इनटू रेडियस नहीं, फोर्स इनटू रेडियस, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? शियर फोर्स इनटू एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई dl, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और पावर का तो है ही 2π/nt/16/6। तो इस क्वेश्चन से आपकी पूरी कंप्लीट बियरिंग रिवाइज होती है। सो दिस इज 37, गुड क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है संदीप? और किसी और की भी? ओके, तो जरूर पूछा करिए। सो अब क्वेश्चन 12 जो है वो किसका है? ये तो स्ट्रेस का क्वेश्चन है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सोडरबर्ग क्राइटेरिया का है ना। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं नहीं लूंगा, हरीश सर आपको ऑलरेडी करा चुके हैं सोडरबर्ग क्राइटेरिया, ठीक है। ये सोडरबर्ग क्राइटेरिया का क्वेश्चन था, मैं छोड़ता हूँ इसे। मैं तो गियर और बियरिंग और ब्रेक और ड्रम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया गियर का, ठीक है। एक 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट स्पर पिनियन, ठीक है, 20 डिग्री। सो अब यहाँ पे मुझे प्रेशर एंगल कितना दे रखा है? व्हाट इज द प्रेशर एंगल? अल्फा इज 20 डिग्री। 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट स्पर पिनियन, 4 मिलीमीटर मॉड्यूल, m is 4, 21 टीथ, z इक्वल टू 21, है ना। मॉड्यूल दिया है, टीथ दिए हैं। मॉड्यूल और टीथ दिया हो तो आपको डायमीटर निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। T इक्वल टू mz, so it is 4 times 21, so it is 84 mm, ठीक है। मॉड्यूल इज गिवन, टीथ इज गिवन, so diameter is 84। to transmit 15 kilowatt power, power is given
15 and 960 RPM. N is given 960 RPM. Phase width is also given B 25. And this is the, I think, common data for question 13 and 14. It is the common data for question 13 and 14. 13-14 दोनों ईयर के हैं और उसके लिए डाटा गिवन है. ठीक है, तो चलिए पहले 13 को करते हैं फिर 14 को करेंगे. So first in question 13 the tangential force transmitted in Newton is. So question is asking about the tangential force. So tangential force is given by PT. It is represented by PT. ठीक है, PT को कई तरीके से निकाल सकते हैं हम. तो जब हमें पावर दी हुई है, ठीक है, पावर इज गिवन, RPM is given, so we can find the torque, and this tangential force is torque divided by radius or torque divided by 2mt by d, है ना. d by 2 is radius, so tangential force is 2mt by d. ये भी एक फॉर्मूला याद रखिए. टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय 2mt by d और यू कैन से mt by रेडियस. ठीक है, अब टॉर्क आप निकाल लेंगे यहां से, बिकॉज पावर इज गिवन, RPM इज गिवन, सो टॉर्क कैन बी फाउंड. तो टॉर्क निकाल लेते हैं. 60 10 to the power 6 किलोवाट. किलोवाट इज 15 गिवन इन क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 2 pi n. n इज 960. चलिए सॉल्व करिए इसे और बताइए कितना आ रहा है टॉर्क. 6 10 to the power 6 into 15 divided by 2 pi into 960. How much it is coming? कितना आ रहा है टॉर्क? टॉर्क कितना आ रहा है? चलिए मैं भी कर लेता हूँ. 60 10 to the power 6 into 15. 149,207. 149,207. 0.76 0.76. Unit is Newton mm. mm. ठीक है, सो दिस इज द टॉर्क, है ना, न्यूटन mm. अब देखो टॉर्क अवेलेबल है, रेडियस चाहिए, तो ये क्या हो गया? 149,207.76 डिवाइड बाय रेडियस. अब देखो डायमीटर 84 है, तो रेडियस कितनी हो गई? 42. 84 का आधा 42. इसको सॉल्व करिए. कितना? 42 से डिवाइड कर दीजिए इसको. 3052. 3000 3552 सर. 3552 है ना, 3552. सो आप ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना. PT इक्वल टू 2mt by d. गेट में कोई कोई क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं, कोई कोई थोड़े से लेंथी भी आते हैं, ना. जैसे पिछला क्वेश्चन काफी लेंथी था, बीयरिंग वाला, है ना. तो ये तो बहुत आसान है. PT एक ही फॉर्मूले से हो गया, 2mt by d. ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. गिवन दैट द टूथ ज्योमेट्री फैक्टर, तो ये वही है, लेविस फैक्टर है ये, है ना. लेविस फैक्टर को कई नामों से जाना जाता है. टूथ फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर, है ना, लेविस फैक्टर, ज्योमेट्री फैक्टर, so many names. So factor is given 0.32 and the combined effect of dynamic load and allied factors intensifying the stress is 1.5. ठीक है, ठीक है. इसका मतलब है कुछ और फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू 1.5 गुनी हो रही है. मतलब हमारे फॉर्मूले से जो भी आएगी उसका हमको 1.5 गुना अज्यूम करना है ना. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, है ना, एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायनामिक लोड एंड अलाइड फैक्टर्स, है ना. डायनामिक लोड की वजह से और कुछ अलाइड फैक्टर की वजह से स्ट्रेस इज इंटेंसिफाइंग 1.5 टाइम्स. ठीक है. द मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस इन मेगापास्कल फॉर द गियर मटेरियल इज. ठीक है, तो ये अलाउएबल स्ट्रेस हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें कुल मिलाकर स्ट्रेस निकालना है. ठीक है, स्ट्रेस निकालना है. ओके, तो डाटा तो यही है ना, सेम डाटा. तो अब स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? देखो, बीम स्ट्रेंथ आपने पढ़ा है ईयर में. बीम स्ट्रेंथ क्या होती है? MB सिग्मा P Y. ये हमारी बीम स्ट्रेंथ होती है. बीम स्ट्रेंथ ये कौन से वाले फॉर्मूले से बीम स्ट्रेंथ है? बाय लुईस इक्वेशन. लुईस इक्वेशन very important in the design of the gears. So as per the Lewis equation, the beam strength is given by MB sigma P Y. Okay, so here module is given for
एंड फेस विड्थ इज गिवन 25 है ना, फेस विड्थ देखिए गिवन है 25 mm, सो इट इज 25 एंड सिग्मा बी इज द स्ट्रेस है ना। और क्वेश्चन हमसे स्ट्रेस पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस, इट इज आस्किंग द अलाउएबल स्ट्रेस, सो इट इज अननोन, सिग्मा बी को सिग्मा बी लिखेंगे। अब y क्या है, लूज फैक्टर या फॉर्म फैक्टर, तो वो फॉर्म फैक्टर हमको दे रखा है 0.32, सो वी विल यूज 0.32। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ रहा है, बीम स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, सॉल्व करिए इनटू करके। कितना आ रहा है, 320 320 पॉइंट में भी आ रहा है कुछ या 320 ही आ रहा है सिर्फ, चलो 320 ही मान लेते हैं। सो इट इज 320 सिग्मा बी, सिग्मा बी तो आ ही रहा होगा है ना, सिग्मा बी हमें फाइंड करना है, अननोन है, तो 320 सिग्मा बी। लेट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ये बीम स्ट्रेंथ की इक्वेशन हो गई, बीम स्ट्रेंथ इतनी है। अब अलाउएबल बात चल रही है, मतलब सेफ डिजाइन है ना, सेफ डिजाइन, तो फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए क्या होना, सर सेफ डिजाइन के लिए जो सर बीम, हाँ बोलिए सर ये 320 नहीं आएगा, 32 सिग्मा भी होगा बस। अच्छा 32 आ रहा है केवल, ओके यस सर। तो चलो मैंने 32 सिग्मा भी कर दिया, राइट। हाँ, अब सेफ, फॉर द सेफ डिजाइन क्या कंडीशन होती है गियर्स में, जो बीम स्ट्रेंथ होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बीम स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए जितना गियर पर लोड आ रहा है, जितना गियर पर लोड आ रहा है। तो हमारा लोड कितना आ रहा है, पीटी, लोड कितना आ रहा है, पीटी, यही तो है, तो एस बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पीटी। तो डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए इसको इक्वल टू साइन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एस बी इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीटी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्वेश्चन में गिवन है, बताओ, इट इज नॉट गिवन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो वी विल अज्यूम लेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1 है ना, लेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1 मान लेंगे जब कुछ नहीं दिया है तो। अब एस बी की वैल्यू कितनी है, 32 सिग्मा बी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो गया। पीटी की वैल्यू कितनी है हमारी, पीटी आपने निकाला था 3552, ये देखो पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने पीटी निकाला हुआ है, तो दैट इज 3552, ठीक है, दैट इज 3552। और यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिए, ये एमटी आपका किसमें आया, न्यूटन एमएम में आया। अब ये बीम स्ट्रेंथ की यूनिट बताइए, बताओ क्या यूनिट है इसकी, मॉड्यूल आपने मिलीमीटर में लिया है, विड्थ आपने मिलीमीटर में ली है, सिग्मा भी अननोन है, वाई का कोई यूनिट होता नहीं है ना, तो बीम स्ट्रेंथ एक फोर्स है, फोर्स ही होता है, तो कुल मिलाकर के ये वाली जो वैल्यू है इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आंसर निकालें सिग्मा बी का, तो न्यूटन है, इसकी यूनिट भी क्या है, न्यूटन है, तो ये न्यूटन है और ये भी न्यूटन है, ठीक है, दिस इज आल्सो न्यूटन और दिस इज आल्सो न्यूटन। तो अब इसको जरा सॉल्व करिए, सिग्मा बी कितना आ रहा है जरा ये बताइए, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लिया है क्या, हाँ हाउ मच इट इज कमिंग, इतना 111 आ रहा है सर, 111.01, 111 ही आ रहा है, 111 आ रहा है, 111 ही आ हाँ रहा बिल्कुल है। सही आ रहा है आपका, यही मेरे पास है 111.01। अब इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि हम न्यूटन और एमएम में ही काम कर रहे हैं, तो ये सिग्मा भी आ गया, ये हमारा अलाउएबल स्ट्रेस हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यू टू द अलाइड फैक्टर्स, ड्यू टू द अलाइड फैक्टर्स द स्ट्रेस इज इंटेंसिफाइंग बाय
1.5 टाइम्स। तो 111 तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस फॉर्मूले में हमने कोई अलाइड फैक्टर तो लिए नहीं अभी, तो उन अलाइड फैक्टर की वजह से स्ट्रेस हमारा 1.5 गुना हो रहा है। तो इस 111 में 1.5 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 111.08 मल्टीप्लाई यस सर आ गया, अब डी कितना आ ऑप्शन रहा है है? 166.5। 166.5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अलाइड फैक्टर और उसकी वजह से। सो दैट वी हैव डन ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास हम एंड कर देंगे, टाइम होने को है। ये क्वेश्चन को बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कर लेना, क्योंकि बियरिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी तर्ज पे हो जाएंगे अब सारे क्वेश्चन बियरिंग के लगभग। थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, देख लेते हैं क्या है इसमें। अगेन हमारे पास बियरिंग का क्वेश्चन आ गया। तो जर्नल बियरिंग हैज ए शाफ्ट डायमीटर ऑफ 40, तो ये तो आपका डी हो गया। लेंथ ऑफ 40, तो ये आपका एल हो गया। शाफ्ट इज रोटेटिंग 20, तो ये आपका ओमेगा हो गया, है ना, रेडियस पर सेकेंड, सो इट इज ओमेगा। ठीक है, और V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है नहीं। अब बियरिंग के केस में लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगता है ना, तो शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय U मतलब विस्कोसिटी, U बाई C, ये याद रखिए, ये फॉर्मूला जगह जगह यूज होता है बियरिंग्स में। तो ये शियर स्ट्रेस, ये विस्कोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये होती है आपकी लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? आर ओमेगा से, है ना, या तो आर ओमेगा से निकाल सकते हो या फिर पाई डी एन बाई 60 से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा दिया है तो आर ओमेगा से निकालना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और यदि आरपीएम वगैरह दी हो तो इससे निकाल सकते हैं, है ना, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो जब आपका ये 20 दे रखा है तो आपका यू निकल जाएगा। तो देखो रेडियस, अब रेडियस कितनी है? डायमीटर 40 है, तो रेडियस 20 हो गई। ठीक है, ओमेगा आपका कितना हो गया? 20, 20 इंटू 20 400। अब यूनिट क्या आएगी? मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने डायमीटर मिलीमीटर में रखा है ना, हमने जो रेडियस रखी है वो मिलीमीटर में रखी है, इसलिए 400 मिलीमीटर पर सेकेंड आएगा। और जहां तक कोशिश हो मशीन डिजाइन में आपकी कैलकुलेशन न्यूटन और मिलीमीटर में हो, फोर्स को न्यूटन में रखिए, डायमेंशन को मिलीमीटर में रखिए, है ना। बाकी आप देख सकते हैं कोई भी यूनिट लेके कॉम्पेटिबिलिटी बनाए रखिए, आंसर सेम आ जाएंगे। सो विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इज 20 मिली पास्कल सेकेंड। अब देखो ये मिली पास्कल में है, तो अब मिली पास्कल को मेगा पास्कल में चेंज कर लो। मेगा पास्कल ही तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये दे रखा है मिली पास्कल, तो मिली पास्कल को मेगा पास्कल में बदल लो, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगा? बोलो। 10 to the power 6। 6 से नहीं होगा, मिली पास्कल को मेगा पास्कल में बदलना है। मिली पास्कल को पहले पास्कल में बदलो, 10 की पावर -3, और पास्कल को फिर मेगा पास्कल में बदलो, 10 सर 9 हो जाएगा, 6 अगेन, 10 की 10 to the power पावर 9। -3 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 20 10 की पावर -9 मेगा पास्कल सेकेंड। ये हो गया हमारी यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। द क्लियरेंस इज 0.020, ये क्लियरेंस हो गया। अब ये क्लियरेंस कौन सा मानोगे आप, डायमेट्रल या रेडियल? बोलो। ये हमारे फॉर्मूले में कौन सा क्लियरेंस होता है? ये वाला क्लियरेंस रेडियल होता है या डायमेट्रल होता है? सर रेडियल होता है रेडियल। अगर सर रेडियस दे रखा होगा तो रेडियल देंगे सर, r/c होगा तो सर R/C नहीं, वो फॉर्मूले तो अलग है ना, वो काहे के समरफील्ड नंबर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप? या इक्वेशन की, है ना, R/C आता है, D/C आता है, मैं समझ गया उन इक्वेशनों में। यदि D/C है तो ये डायमेट्रल क्लियरेंस होता है, R/C है तो ये रेडियल क्लियरेंस होता है। अब ये वाले जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे भी क्लियरेंस का यूज होता है, तो ये क्लियरेंस रेडियल क्लियरेंस यूज होता है। तो अब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये कौन सा क्लियरेंस है, इट इज नॉट क्लियर, तो हम इसको रेडियल क्लियरेंस ही अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो क्लियरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 0.020 हो जाएगा रेडियल क्लियरेंस, करेक्ट। द लॉस ऑफ टॉर्क
टॉर्क निकालना है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है शियर स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू रेडियस। ये हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ टॉर्क। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये यूनिट किस में आ रही है, न्यूटन मीटर में आ रही है, तो हमारा न्यूटन मिलीमीटर में आंसर आएगा। हम उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा न्यूटन मीटर में आंसर हम दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पिछले वाले की तरह से है, इसमें कोई चेंज नहीं, Yes, sir. फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा स्वयं। ठीक है, टॉर्क टॉर्क आप यहां से निकाल लेना है ना, और एरिया, एरिया कितना लोगे, वही कर्व सरफेस एरिया पाई डी एल, कर्व सरफेस एरिया पाई डी एल है ना, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर सी एस ए, और रेडियस आपकी कितनी है 40 का आधा 20, बस इसको मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर। ठीक है, अब हमारा टाइम भी हो गया है, 4 बजने को है, तो वी विल एंड हियर, और कल की क्लास में हम इससे आगे चलेंगे है ना, और हम यही पैटर्न रखेंगे। वी विल फोकस ओनली ऑन द बियरिंग क्वेश्चंस एंड गियर क्वेश्चंस एंड क्लच एंड ब्रेक क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज एंड द क्लास। यस, बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या क्लियर है, सब कुछ समझ में आया? सर ओके, सर ये पीडीएफ सर सेंड कर देना सर व्हाट्सएप। हाँ सेंड कर देंगे आपको, ये पूरी फाइल आपको दे देंगे और विद आंसर दे देंगे आपको है ना, इसके आंसर भी बता देंगे कि, और इस बियरिंग के अलावा जो और क्वेश्चन है ना उनके भी आंसर दे देंगे, मतलब एवरीथिंग आपको मिल जाएगा है ना। आई विल प्रोवाइड यू फुल फाइल। ओके सर। ओके, तो आपका ग्रुप कौन सा है इस वक्त, वही वाला है जो 3rd ईयर 6th सेम करके था पहले? वो भी है सर, और प्लेसमेंट का सर एक और बन गया सर वो। एक और बन गया, तो उसमें हम तो ऐड है नहीं, या तो उसमें ऐड करा देना हमको, हम उसमें शेयर कर देंगे। तो विकास सर है सर। हाँ, तो आप कोई आपका और भी तो होगा एडमिन उसमें, आप मुझे ऐड करा देना उसमें है ना। चलिए ठीक है, तो वी कैन एंड नाउ। यस। ओके, वी अगेन मीट टुमारो है ना। टुमारो का टाइम देख लेना कितने बजे का है हमारा टाइम कल का, है ना, क्योंकि 1 कल, to 3 हाँ मेरे ख्याल से टाइम टेबल में कितना है, 1 से 3 है यस सर। है ना, तो वो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि मेरी ना 12 से 2 उधर क्लास भी है वैल्यू एडेड कोर्स की, तो क्लैशिंग हो रही है उसमें टाइम में, तो मैंने रावत सर को बोला है, तो वो थोड़ा टाइम को एडजस्ट करेंगे कल है ना, तो उसके हो सकता है कि टाइम 3 से 5 हो जाए कल वाला आपका डिजाइन का है ना, तो देख लेना, वो तो आपके टाइम टेबल में आ ही जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।